कोई नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो उसको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए? As I said you, वो 2 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते। Our business was started in 2015. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू द कंपनी। आपने बताया 2015 में स्टार्ट किया था आपने। We have covered almost 23 districts of Madhya Pradesh. मेरे घर पे मुझे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है और 5 किलोवाट की जरूरत है। 3.5 to 4 years में तो आपका ब्रेक इवन होगा। इंडस्ट्री का फ्यूचर का है। Hybrid systems are going to grow very fast, battery operated. कोई भी टेरेस पे इंस्टॉलेशन किया है तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो शैडो फ्री होना। शेडो नहीं आ रही थी मींस? जो 2,70,000 आपने लगाए थे उसमें से 78,000 का तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा। मोटा मोटी एक महीने में 5,000 रुपए बचा लेंगे। ग्रेट। कि ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ये तो सेविंग है। हाय पूजा, वेलकम टू द आइडिया मैन शो। थोड़ा आपके बारे में बताओ, आपने एजुकेशन में क्या किया, फिर सोलर इंडस्ट्री में कैसे आए और फिर ये स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया? Hi, I'm Pooja. I was born and brought up in Jalgaon. I did my engineering in IT from Pune MIT College. And after that, I worked in a software company for a year. And in 2010, I got married. Then I had a daughter also. And then after that, I thought of exploring new business opportunities. And then we were exploring some 2-3 opportunities of in education sector also, in energy sector, as this was a very upcoming sector. And then suddenly my brother and my sister-in-law, we were discussing and we were thinking of new opportunities. So we thought this energy sector as a very good opportunity, and there is a complete story also and why we went into this and started this solar field. बट मतलब कुछ ऐसा क्लिक किया कि सोलर इंडस्ट्री में ही क्यों जाना है? हाँ, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स तो उस वक्त काफी बूम में थे। इफ आई टॉक अबाउट 2015, एवरीबडी वाज गोइंग इनटू ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स, and then suddenly we saw a gap in rooftop projects, ओके। and there was a huge demand supply gap in rooftop projects in 2015, and so we thought that this is a right time and right opportunity, and we just jumped into it. सो आई थिंक यू आर 3 co-founders, राइट? तो आप इनसे कैसे मिले और अभी कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है? They both are my relatives. अच्छा। One is my brother, ग्रेट। one is my sister-in-law. ये तो अच्छा है यार, फैमिली में से ही सब लोग हैं तो फिर ट्रस्ट और 100% बढ़ जाता है। From But- trust point of view, we are like very much at peace. ग्रेट ग्रेट। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे या अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, तो उसको फिर आप कैसे सॉर्ट करते हो? Generally, we keep very transparent in discussions, and we come up and we straightforward talk to each other about things and try to resolve it. The name of the company is Infinite Energy Solutions Private Limited, and we started this in 2016. Our business was started in 2015, but first it was a partnership firm, and later on we converted it to a private limited company in 2016. We work in residential, industrial and commercial, तीनों segments में हम काम करते हैं। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू द कंपनी। आपने बताया 2015 में स्टार्ट किया था आपने। सो हाउ बिग इज योर कंपनी टुडे और आप अभी कितना मार्केट एक्सपैंड कर चुके हैं, कौन कौन सी सिटीज में? We started very small. We started from our home, not even an office. And we cracked first few projects from our home. And then we shifted to a small office. And today we have covered almost 23 districts of Madhya Pradesh. Okay. And we have installed few projects in Rajasthan and Maharashtra also. ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जब आपने स्टार्ट किया था आपने सोचा कि आप एनर्जी सेगमेंट में ही आपको जाना है। सो व्हेन इट कम्स टू सोलर, सो आपने मैन्युफैक्चरिंग का क्यों नहीं सोचा? व्हाई ओनली फॉर इंस्टॉलेशन? Okay, manufacturing, interesting question. When you talk about manufacturing, the first thing that comes into mind is heavy investments. करेक्ट। You cannot start anything without huge investments in manufacturing sector. And we wanted to build something on our own with low or with limited investments. So that's why we came into EPC sector. We became a solar integrator. That means we are an EPC vendor. We do engineering, procurement, commissioning of solar rooftop projects, because to start this business, you don't require huge investments. अच्छा, Yes, this is a आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? We just started with 21 lakhs. इन 2015। Yes. सो अभी किसी को स्टार्ट करना हो तो आई थिंक 2 or 3 टाइम्स एटलीस्ट। No. You can start it as low as 2 lakhs also. क्या बात कर रहे हो? आप कर सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज इस इंडस्ट्री में मोस्टली एडवांस लेकर काम होता है,
तो आपने प्रोजेक्ट लिया, यू जस्ट नीड बेसिक मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, and you can just start doing installation of solar rooftop projects if you have a proper technical know-how of the things. सो व्हेन इट कम्स टू मटेरियल पार्ट, जैसे पैनल्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल्स होता है, सो वेयर डू यू आउटसोर्स दिस मटेरियल? We have different vendors for the raw materials because there are a number of things required in the complete setup. The major part is the panels, inverters, structures, wires, cables, ACDBs, DCDBs, earthing kits, tightening canisters. ये पूरा एक सारी चीजें लगती है, तो सबके यूजुअली अलग अलग वेंडर्स आते हैं. अच्छा. कि पैनल्स यूजुअली वी प्रोक्योर फ्रॉम बिग ब्रांड्स बिकॉज सबको मार्केट में एक क्लास मतलब वी डू ओनली टायर 1 मैन्युफैक्चरर्स, सो वी प्रोक्योर पैनल्स फ्रॉम दोज ब्रांड्स. इन्वर्टर्स भी हम उसी तरह से प्रोक्योर करते हैं. इफ somebody wants to go in international brands, we are open for that. Otherwise, we go with Indian brands also. And as per the customer requirements, we give them the product. सो अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे घर पे मुझे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है और 5 किलोवाट की ज़रूरत है, तो मेरा ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगेगा? मैं कितने टाइम में इसका जो अमाउंट है वो रिकवर कर पाऊंगा? एक टेंटेटिव 5 किलोवाट का प्राइसिंग होता है 2,80,000 से लेके 3 लाख के बीच में, कहीं भी 270 से 3 लाख. थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपके साइट सर्वे पे और आपके मटेरियल सिलेक्शन में. सो इसीलिए हम एक रेंज बोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके यहाँ कौन सा मीटर है, आप किस हाइट पे स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करेंगे, तो आई हैव टू कीप अ रेंज. और एक 5 किलोवाट के सिस्टम से अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, आप मोटा मोटी एक महीने में 5,000 रुपए बचा लेंगे. ठीक है, तो 12 महीने के आपने बचाए 60,000. 4 साल में आपने बचा लिए 6 into 12, 24. या 2,40,000. और जो 2,70,000 आपने लगाए थे उसमें से 78,000 का तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा. अच्छा, 280 में से 78 सब्सिडी भी मिल जाएगी? जैसे ही आपके यहाँ सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम पूरा सब्सिडी का प्रोसेस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी रिलीज होता है. विद इन 2 to 3 months 4 months हो ही जाता है. तो अब जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो कॉस्टिंग हो गई वो हो गई 2 लाख रुपीस. तो इट्स लाइक 3.5 to 4 years में तो आपका ब्रेक इवन होगा. सो आपने जो 600 यूनिट्स 5 किलोवाट से 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो 5 किलोवाट का सिस्टम एवरेज 20 यूनिट बनाएगा. राइट, महीने के कितने हुए? 600 यूनिट्स. तो ये इतने यूनिट्स तो आज आपने बुक कर लिए कि आपके सोलर से बनेंगे फॉर कमिंग 30 years. आज गवर्नमेंट का टैरिफ है 6.90 रुपए. ठीक है, 10 साल बाद ये कितना होगा? तो ये 600 यूनिट के लिए तो आपने अपना टैरिफ आज फिक्स कर लिया. आप टेंशन फ्री है कि गवर्नमेंट का टैरिफ कहीं भी जाए, बट आपके 600 यूनिट तो आपके सोलर से बनेगी. सो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस और आते हैं मेरे कि फॉर एन एग्जांपल अगर किसी को कमर्शियल के लिए भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है तो क्या उसको भी सब्सिडी मिल जाती है? कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं होती. अच्छा, क्योंकि वहां आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. अच्छा, ठीक. से फॉर एग्जांपल अगर आपने कमर्शियल में एक प्रोजेक्ट लगाया है तो यू कैन टेक 100% डिप्रिसिएशन ऑन दैट अमाउंट. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन आई हैव हियर कि मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लिया मेरी छत पे, सो इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है जो मुझे देना होता है हर साल? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती है. एक बार जब हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो 5 years तक के तो हम ही आपको मेंटेनेंस फ्री देते हैं. अच्छा, 5 साल तक तो आपको कुछ भी नहीं करना है. 2 years तक हम आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दोनों देते हैं, और 5 years तक पूरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस देते हैं. तो पहले 5 साल तो आपको कुछ भी नहीं करना है. अगर आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट कॉल अस. वी ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन 48 hours और एज क्विकली एज पॉसिबल. और उसके बाद आप हमसे AMC ले सकते हैं. सो बेसिकली क्या चार्जेस होते हैं AMC के? फॉर अ 5 kilowatt प्रोजेक्ट अराउंड 6,000 अप्रोक्सीमेटली फॉर अ ईयर, जिसमें हम आपको 4 मैंडेटरी विजिट्स देते हैं एवरी क्वार्टर. आप हमें बुलाएं ना बुलाएं, बट एवरी क्वार्टर विल डू अ पूरा डिटेल चेक, जिसमें कि हम आपकी पैनल, इन्वर्टर, हर एक स्ट्रिंग में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज वी डोंट नो. कभी क्या होता है कि सिस्टम ओपन में लगा हुआ है, कोई चूहा है, गिलहरी है, कुछ भी वायर काट के चले जाए, तो उसका एफिशिएंसी डाउन हो सकता है. अब हमें तो नहीं पता. हम अगर आप
इतने मतलब जो थोड़े से इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं वो तो फिर भी अपना जनरेशन डेली फ़ोन पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज़ हम उसे वाईफ़ाई से कनेक्ट करके उसको आपके फ़ोन पे ही ले आते हैं उस एप्लीकेशन को। बट जिसका इतना इंटरेस्ट नहीं है या जो फिर इतना टेक फ्रेंडली नहीं है, उसे तो पता नहीं चलता है कि ऊपर क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रिवेंटिव चेक्स या एनुअल मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब एवरी क्वार्टर आते हैं तो हम हर चीज़ को डिटेल में चेक करते हैं। पैनल्स अगर डस्टी हो रही है तो वी रिकमेंड यू टू डू फ्रीक्वेंट वॉशिंग्स और आप उसे क्लीन करिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ टफन ग्लास। अगर उस पर डस्ट होगा तो उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। करेक्ट। तो सोलर में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू कीप योर सोलर पैनल्स क्लीन। इससे आप अपना 30% तक का डिफरेंस आता है जनरेशन और एफिशिएंसी। सारी नेशनलाइज्ड बैंक्स इनफैक्ट तभी प्रमोट कर रही है सोलर को, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एंड वी हैव टाइप्स ऑल्सो विथ यू नेशनलाइज्ड बैंक्स। अगर आपको लोन चाहिए तो अगर आपका सिबिल वगैरह क्लियर है तो मैक्सिमम 2 to 3 डेज में लोन डिस्पर्स हो जाता है। ओके। इट इज़ वेरी इजी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो पोर्टल है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो पोर्टल है, उसी के साथ सरकार ने जन समर्थ पोर्टल जिससे लोन होता है उसको इंटीग्रेट कर रखा है। तो आपको उसके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप उसी पोर्टल से लोन का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट योर बैंक, उसमें बैंक के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। वॉट एवर इज योर नियरेस्ट बैंक या जहाँ भी आपका अकाउंट हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और वो उस बैंक में उस आपको एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है। यू जस्ट नीड टू विजिट द ब्रांच वंस एंड देन द लोन इज डिस्बर्स्ड। ग्रेट यार। 6% पे सरकार पैसा दे रही है फॉर अ 3 किलोवाट कस्टमर, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है सोलर को कि हर घर सोलर हो। मतलब ऐसा एक विजन है कि जब इंसान घर बनाता है तो टीवी एक नेसेसिटी है, इसे एक लग्जरी की तरह ना देखा जाए। बिकॉज जब आप इसे समझेंगे तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ये तो सेविंग्स है। करेक्ट है। क्योंकि आपने एक बार प्लांट लगाया, आप मुझे बताइए, आप आईफोन खरीदते हैं 1.5 लाख का, आपको क्या रिटर्न्स मिलता है? ये तो टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कोई रिटर्न नहीं है। बट सोलर एक ऐसी चीज है जो आपको खरीदने के बाद 25 साल तक रिटर्न दे रही है। करेक्ट। एवरी ईयर एवरी मंथ वो आपको सेविंग्स करके दे रही है। तो जब इंसान को ये समझ में आता है कि दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ सेविंग फॉर हिज फ्यूचर, तो आई थिंक ही इज कन्विंस्ड। तो 3 किलोवाट पे आपको 6% पे लोन मिलता है, और 3 अबाउ इट डिपेंड्स, लाइक 8.5, 9, 9.5। क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में? या पैनल्स, इन्वर्टर, वायर्स, केबल्स, स्ट्रक्चर्स, एसीडीबी, डीसीडीबीज, तड़ी चालक, लाइटनिंग अरेस्टर जैसे हम कहते हैं, प्रॉपर अर्थिंग किट्स, ये पूरा एक सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो कोई डिफरेंशिएशन आता है एक लोकल वेंडर से पैनल इंस्टॉल करवाने में और अडानी या राइजन जैसे बड़े कंपनीज से इंस्टॉलेशन करवाने में? जनरली अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, लोकल एक आप ऑथराइज वेंडर से या फिर एक वेंडर जो गुड क्वालिटी सप्लाई देता है, मैं उसमें और लोकल वेंडर्स में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो लोग कई बार सिर्फ प्राइस पॉइंट पे खेल रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। तो जब आप प्राइस पॉइंट पे खेलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं मार्केट में जो मेरी कॉस्ट प्राइस नहीं होती है उसमें लोग प्लान सेल कर रहे होते हैं। ओह गॉड। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हाउ दिस इज हैपनिंग। मैं तो कई बार ये भी बोलती हूँ कि यार आप हमारे लिए भी इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि हमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है फिर। सही बात। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम उनके इंस्टॉलेशंस को देखने का मौका मिलता है तब हमें पता चलता है कि कितने सारे लूप होल्स हो सकते हैं एक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस में, और कितना लोग उसमें प्ले करके पैसा बचा लेते हैं। कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन आ जाता है? देखिए, आजकल का हर जगह आ सकता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि पैनल इन्वर्टर तो हम फिर भी ब्रांड से चेक कर लेते हैं कि इस ब्रांड का हम दे रहे हैं। बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि आजकल पैनल में भी स्कैम्स हो रहे हैं। लोग अडानी के स्टिकर्स चिपका के पैनल्स भी ले लेते हैं, तो इस तरह का स्कैम भी हो रहा है मार्केट में। बट वो एक अलग स्टोरी है। मैं बात करूंगी स्ट्रक्चर्स की, जो सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है हमारा या और किसी वेंडर के साथ में। तो हमारी स्ट्रक्चर और एक इंस्टॉलेशन क्वालिटी हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो मार्केट में 2-3 तरह के स्ट्रक्चर चलते हैं। एमएस पे भी स्ट्रक्चर बनता है, हॉट डिप स्ट्रक्चर बनता है, जीआई स्ट्रक्चर बनता है और गैल्वेलियम बनता है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता क्या है।
बेसिकली बनते सब एमएस पे ही है, बट जब आप एमएस पे एक कोल्ड कोटिंग करते हैं जिंक की, तो उसे कहा जाता है जीआई का स्ट्रक्चर। जब आपने किसी स्ट्रक्चर में वेल्डिंग किया है, तो उस वेल्डिंग को आपको छुपाना है या उसको फिर से रिपॉलिश करना है, तो उसको एक हॉट बाथ में जिंक की कोटिंग दी जाती है। तो इसीलिए उसे हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड कहते हैं, ताकि वो वेल्डिंग अपन उसको कोट कर पाए। अब एक स्ट्रक्चर होता है गैल्वेलियम, जो इन दोनों से भी प्रीमियम है। गैल्वेलियम पे एक अलॉय का कोटिंग किया जाता है, विच इज जिंक, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इन तीनों से इसकी कोटिंग का जो रस्टिंग पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पैनल्स की, कि पैनल्स की लाइफ है 25 से 30 साल, तो क्यों ना हम स्ट्रक्चर भी ऐसा रहे जो इसलिए 25 साल देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर्स में आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद मेंटेनेंस आएगा, तो आपको उसको रिपेंट करना, ये सब। और रस्टिंग के भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स में रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बहुत कम होती है क्योंकि जब तक पॉसिबल हो हम कहीं वेल्डिंग नहीं करते। तो अगर आपने वेल्डिंग नहीं किया है तो उसके नेचुरल मटेरियल से कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वो मॉइस्चर ही नहीं पकड़ेगा, तो इसलिए रस्टिंग नहीं आएगी। तो वी गिव वेल्डिंग फ्री गैल्वेलियम स्ट्रक्चर्स। सेकेंड, हम जो क्लैम्प्स यूज करते हैं, मिड क्लैम्प्स, एंड क्लैम्प्स, नट बोल्स, ये सब होते हैं प्योर, मतलब क्लैम्प्स होते हैं प्योर एल्यूमिनियम के, और हमारे नट बोल्स होते हैं एसएस, प्योर एसएस के। क्योंकि जो रस्टिंग होता है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले नट बोल से। तो इतनी डिटेलिंग में हम ध्यान रखते हैं इंस्टॉलेशन का कि आपका जो नट बोल्ट है वो भी पूरा एसएस 304 स्टैंडर्ड का हो, ताकि वहां पे कोई रस्टिंग नहीं आए। फॉर होम यूजर्स क्या कोई बड़ा एडवांटेज है? मेट्रो सिटीज में सोसाइटीज पे तो आप सोलर लगा ही सकते हैं फॉर द कॉमन एरियाज, क्योंकि एक कॉमन टेरेस होती है और उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है। तो कॉमन एरियाज को तो लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर पे, तो दैट मच तो दे कैन डू इट। बट उनको अगर उनके पर्सनल यूज के लिए लगाना है तो एक वर्चुअल नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। वर्चुअल नेट मीटरिंग, अच्छा, जैसे जो हम सिस्टम्स लगाते हैं सोलर के, अभी वो सब नेट मीटरिंग के अंडर होते हैं। नेट मीटरिंग मीन्स कि आप जो बिजली बना रहे हैं, आप जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो पहले आप अपने घर में यूज करते हैं या प्रीमाइसेस में, और जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है वो आप गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इवनिंग के बाद, सनसेट के बाद, जब आप सोलर तो बनाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो आप वापस से गवर्नमेंट से बिजली को इंपोर्ट करते हैं। तो दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिट्स जो कि आपका पूरे महीने चलता है, ये जैसे अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, तो हम मानते हैं कि आपने 600 यूनिट्स बनाई, तो आप उसमें से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे 300-400 यूनिट, और कुछ इंपोर्ट करेंगे 200-300 यूनिट। तो जो भी फिगर होगा रिमेनिंग, उतने का आपको सरकार बिल दे देती है। अब हम थोड़ा बिजनेस साइड पे चलते हैं, तो आपके मेजर कस्टमर्स कौन कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था, हम तीनों ही सेगमेंट्स में काम करते हैं, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। तो आई हैव इक्वली कस्टमर्स, और तीनों को ह्यूज रिक्वायरमेंट होता है। बट कमर्शियल में एक जो मतलब चैलेंज होता है कि बिल्स तो बहुत होते हैं, ज़्यादा आते हैं, बट स्पेस लिमिटेड होता है। से इफ़ यू केस हम कंसिडर करें तो हॉस्पिटल्स का और होटल्स का, इन दोनों केसेस में जो हमें चैलेंज फेस होता है, टेरेस बहुत लिमिटेड है, और टेरेस पे ऑलरेडी बहुत चीज़ें इंस्टॉल्ड होती है आजकल, एसीज, वाटर सॉफ्टनर्स, वाटर हीटर्स, तो हमारे पास में फिर जगह बहुत कम बचती है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिल्स तो लाखों के होते हैं हॉस्पिटल्स के और होटल्स के, बट दे हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, तो फिर इसलिए वहाँ पे एक चैलेंज हमें आता है। बट जहाँ पे स्पेस है वहाँ डेफिनेटली पीपल आर ऑप्टिंग। इंडस्ट्रीज में तो जनरली बड़े बड़े शेड्स होते ही हैं, तो वहाँ पे टिन शेड्स पर डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाते हैं। और होम ओनर्स तो है ही एक बहुत बड़ा चंक रूफटॉप में। इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर सब्सिडीज? अभी एकदम नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा है कि कम होगी, बट सब्सिडी स्ट्रक्चर 2-3 बार चेंज हो चुका है पिछले 3-4 सालों में। पहले सब्सिडी अलग थी, पहले 10 किलोवाट तक के सब्सिडी का स्ट्रक्चर था कि 10 किलोवाट अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो 1,14,000 तक भी सब्सिडी मिली है लोगों को। अच्छा, 96,000 मिलती थी, पर फिर अब सरकार ने इस स्कीम को लिमिट करके इसको 78,000 तक की लिया है। तो आई थिंक एक प्रॉब्लम और आती होगी कि कस्टमर को बेसिकली सब्सिडी दिलवाना है और वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो क्या आपको सब्सिडी दिलवाने में भी कोई प्रॉब्लम आती है या ये स्मूथली हो जाता है? No, I think thanks to the central government portal,
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. It is completely online, no licensing required at any point of time, and it is very very hassle free. इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती. टाइम लग सकता है बट प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है. इफ द डॉक्यूमेंटेशन इज क्लियर, आपकी फाइल क्लियर है, तो आज तक तो मेरी एक भी सब्सिडी नहीं रुकी है. और वो सीधे कस्टमर के बैंक अकाउंट में आती है. अमेजिंग. ओनली थिंग नीडेड इज योर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी क्लियर. और मैं बात करूं अगर एवरेज टिकट साइज की तो 1,80,000 to 2,80,000, 90,000. और कमर्शियल का कितना जाता है एक एवरेज टिकट साइज? अगर हम बात करें 100 किलोवाट की भी अगर हम बात करते हैं तो इट गोज अराउंड 28 to 30 lakhs. और ऑन एन एवरेज एक महीने में कितने इंस्टॉलेशंस हो जाते हैं आपके? डिपेंड्स ऑन द किलोवाट साइज. अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको महीना भर अकेले कोई लग जाता है. जैसे अगर 200-300 किलोवाट का सिंगल प्रोजेक्ट है तो वो अपने आप में काफ़ी समय ले लेता है. बट एक 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारी इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस अब इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि हम 3 किलोवाट का साइट तो सुबह से रात तक खत्म कर देते हैं. ओके, एक ही दिन में हो जाता है. और अगर मैं टेंटेटिवली बात करूं एक महीने में आप कितने प्रोजेक्ट्स क्लोज कर देते हो? अराउंड 15 to 20 और रेसिडेंशियल? इंस्टॉलेशन. हाँ, इंस्टॉलेशन. मतलब मैं इसमें रेसिडेंशियल भी काउंट कर रही हूँ. ओके, मतलब ओवरऑल ही मैं मान. ओवरऑल 15 to 20 प्रोजेक्ट्स. ओके, दैट्स फाइन, ठीक है. डिपेंड्स अगेन कि आप पैरेलली कितनी टीम रन कर रहे हैं, क्योंकि अब एक टीम तो इतने प्रोजेक्ट्स क्लोज कर लेगी. 10 to 15 प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है तो फिर हम 2-3 टीम से भी काम करवाते हैं. और अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो क्या टेंटेटिवली मार्जिन्स बच जाते हैं आपको? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 10% तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स में इट इज़ नॉट 10%. अच्छा. राइट. तो एक 10 to 12% का एक हम एवरेज ग्रॉस मार्जिन ओवरऑल पकड़ सकते हैं. और टीम की बात करूं तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होता है और क्या हायरार्की होती है? फिर वी हैव अ सेल्स टीम. हाँ. 5 to 7 पीपल का हमारा सेल्स टीम है. वी हैव मार्केटिंग पार्टनर्स वर्किंग फॉर अस. जिसके बाद में हमारा सर्विस टीम काफ़ी बड़ा है, जिसमें इंजीनियर्स, डेडिकेटेड सर्विस इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस है. वो हमारा 10 से 15 लोगों का टीम है. उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन का टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं. फिर वी हैव आर, हम लोगों का खुद का ही सब व्हीकल्स होता है, तो लोडिंग अनलोडिंग, तो वी हैव दोज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो वर्किंग विद अस. तो ऐसे इंस्टॉलेशन टीम हमारा होगा अराउंड 15 to 20 लोगों का इन हाउस टीम होगा. तो इस तरह से एक पूरा टीम का स्ट्रक्चर है. बट सर्विस टीम बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप आफ्टर सेल सर्विस दे ही नहीं पाएंगे. गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, गुड प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और गुड सर्विस टीम. क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपने ले लिया, बाद में मैनेज तो इन्हीं करना है. मार्केटिंग आप कैसे करते हो? कहाँ से लीड्स आती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपके पास लीड्स मिल जाती हैं आपको? सोलर में जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है हमारे ये, दैट इज़ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. अच्छा. सबसे ज़्यादा, मतलब हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी है बट हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स इसी से मिले हैं. when a person is satisfied, he recommends you, and that is why we are growing organically. Second, हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं. we have channel partners बोल सकते हैं, या marketing partners in different cities working for us. They do marketing for us. इसके अलावा हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स में. we do online offline marketing also, on and off. और we are doing digital marketing also nowadays from last 2 to 3 years. कोई नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो उसको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने के लिए? As I said you, वो 2 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ भी नहीं चाहिए आपको अगर सोलर का बिजनेस स्टार्ट करना है आज की डेट में. यू जस्ट नीड फ्यू इक्विपमेंट्स, ग्राइंडर्स वगैरह, जो एक बेसिक आपको टूल्स लगते हैं वो चाहिए. आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं. और जनरली सोलर इंडस्ट्री में एडवांस पे काम होता है. आपने प्रोजेक्ट उठाया, आप उस हिसाब से मटेरियल बुक करिए, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करिए, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट इट इफ यू हैव टेक्निकल नॉलेज. और आप धीरे धीरे अपना टीम बना सकते हैं. स्पेस कितनी चाहिए होती है स्टार्टिंग में? अगर आपको मटेरियल स्टॉक नहीं करना है तो यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेस आइडियली. एक 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? तो लाइक अगर 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है तो हम अपनी इंस्टॉलेशन टीम खुद भेजते हैं. उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, और 2-3 लोगों की इंस्टॉलेशन टीम होती है जो पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती है. क्या बीइंग अ कंपनी आपको भी सब्सिडीज मिलती है? हाँ, मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है. और कोई लाइसेंसिंग? तो बेसिक रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 3 इलेक्ट्रिसिटी जोन्स.
जहाँ हम हैं उसे पश्चिम क्षेत्र बोला जाता है, पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्र। तो आपको पश्चिम क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके पोर्टल पे जाके, ताकि आप ये नेट मीटरिंग वगैरह सब कुछ करवा सकें। और आपको अगर ऑथराइज वेंडर बनना है तो आपको प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पे जाके उसका एक फीस भर के अपना ऑथराइज वेंडर का आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ब्रेक इवन इसका कितने टाइम में आ जाता है? ब्रेक इवन अगर मैं बात करूँ तो एज एन लाइक अगर आपने 10-15 प्रोजेक्ट्स भी कर लिए तो आपका ब्रेक इवन इजीली हो जाएगा। सबको दूसरों का बिजनेस देख के बहुत बढ़िया लगता है, बट इस बिजनेस के भी कुछ चैलेंजेस होंगे। आपको क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं इस बिजनेस में, और आपको क्या लगता है कि अगर कोई शुरुआत करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? इट्स नॉट इतना इजी जैसा ये दिखता है, बिकॉज लोगों को दैट इज ट्रू कि सोलर इंस्टॉल करना आज की डेट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इतने वेंडर्स आ चुके हैं मार्केट में अभी, बिकॉज एवरीबडी सीइंग, जैसे 2006 में आईटी का बूम आया था, आई विल टेल यू कि अभी उस तरह से सोलर का बूम है। एवरी अदर वेंडर वांट्स टू बिकम एन सोलर इंटीग्रेटर और सोलर लगाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इंस्टॉलेशन सीखना, बट उसको सही तरह से करना और उसकी आफ्टर सेल सर्विस देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब इंस्टॉल तो कर दिया आपने, बट अगर वो पैनल्स आउट ऑफ वारंटी हो गई, अगर वो इंस्टॉलेशन उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगी, अगर पानी का एफिशिएंसी डाउन हुआ, तो आप कस्टमर को पैनल रिप्लेस करवा के दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि आज हमने जब पैनल रिप्लेस करवाए अडानी से या किसी भी कंपनी से, तो हमें पता है कि एक पैनल रिप्लेस करने में मुझे कितने ईमेल्स लिखने पड़े और उनको कितनी सारी चीजें देनी पड़ी मेल पे, कि मेरा जो इंस्टॉलेशन था वो इस क्वालिटी का था, मेरा इंस्टॉलेशन शैडो फ्री था, उस पर कोई शैडो नहीं आ रही थी, क्योंकि अदरवाइज तो वो मेरी पैनल को आउट ऑफ वारंटी कर देगा। शैडो नहीं आ रही थी मींस? ये देखिए, अगर आपने कोई भी टेरेस पे इंस्टॉलेशन किया है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो इंस्टॉलेशन शैडो फ्री होना चाहिए। हाँ, ओके। मतलब किसी भी मोबाइल टावर का शैडो, या वाटर टैंक का शैडो, या पैरापेट वॉल की शैडो, या कोई भी ऑब्जेक्ट, पास में कोई बड़ी बिल्डिंग है, जब आपने लगाया तब नहीं थी पर बाद में कोई बिल्डिंग राइज हो गई, तो उसका शैडो तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम एएमसी में चेक करते रहते हैं। बट अगर शैडो, कोई कंसिस्टेंट शैडो आ रही है, जब लगाया पास में कोई पेड़ था वो छोटा था पर 4 साल बाद वो बड़ा हो गया, राइट, सही ऐसा होता है, तो उसकी शैडो आ रही है, तो वो जो शैडो आती है उससे पैनल पे डार्क स्पॉट बन जाता है और वो पैनल उतनी जगह पे ब्लैक हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो पैनल आउट ऑफ वारंटी हो गई। तो जब वेंडर उसकी रिप्लेसमेंट चाहेगा तो वो करवा ही नहीं पाएगा। कि ये तो सिर्फ एक चैलेंज हुआ। इसके बाद में इन्वर्टर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब जैसे इन्वर्टर की आप 5, पहले स्टार्टिंग में 5 इयर्स वारंटी होती थी, फिर अब 10 इयर्स वारंटी है, तो आपका इंस्टॉलेशन क्या उस स्टैंडर्ड का है कि आप उसके रिप्लेसमेंट्स और ये सब दिलवा पाओ। ये रियल चैलेंजेस होते हैं आफ्टर सेल्स में। वायर्स है, कभी गिलहरी चूहे ने किसी वायर को काट दिया, और इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उसमें अलग ही तरह की चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व होती है, तो यू नीड टू बी टेक्निकली वेरी साउंड टू सॉल्व ऑल दीस थिंग्स। एक और चैलेंज आता है पैनल अवेलेबिलिटी वाला, वो इजीली मिल जाते हैं आपको? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपने कस्टमर को कमिट कर दिया कि आप 2 मंथ्स में प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे, राइट, आपने एडवांस ले लिया, बट पैनल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और रेट्स चेंज कर देती है या तो कंपनीज। आपने जो रेट पे पैनल बुक किया है, सडनली दे विल से नाउ कि रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, तो नाउ यू कम इन अ डेडलॉक सिचुएशन। आपने कस्टमर से पैसा ले लिया, कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, अब आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि आप हमें और पैसे दीजिए। सही बात है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट। सो जो आपका कंपटीशन है वो लोकल प्लेयर्स हैं या बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के? कंपटीशन मुझे देते हैं जरूर लोकल प्लेयर्स हैं, बट मैं उसे अपना कंपटीशन मानती नहीं हूँ, बिकॉज हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अलग है। डिफरेंस होगा। तो अगर मैं बात करूं कि हाई क्वालिटी वेंडर्स जैसे वारी है, सोलर स्क्वायर है, ये लोग एक अच्छी क्वालिटी का वर्क मार्केट में करते हैं। इस इंडस्ट्री में भी कुछ स्कैम्स होते होंगे या कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, क्या क्या है वो? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पैनल्स पे गलत स्टिकर्स लगा के बेचा जा रहा है, हाँ। कि नॉर्मल की कोई लोकल ब्रांड की पैनल्स है, उस पे लोग अडानी का स्टिकर लगा देते हैं, और ऐसे भी पैनल सेल करते हैं। या फिर चाइना से बी और सी ग्रेड की पैनल्स आती है। अच्छा। तो अगर आपने 18 पैनल्स लगानी है फॉर एग्जाम्पल, तो 9 पैनल्स तो वो सही दे देंगे, बीच में 4-5 पैनल्स आपको गलत
लगा देंगे, या फिर कई बार आपने 18 पैनल्स या 20 पैनल्स लगानी है तो एक पैनल ही उड़ा देते हैं, ओके बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि कस्टमर फिजिकली जाके वेरीफाई करता है कि ऊपर एक एक स्टिकर को या काउंटिंग को, ये सब होता है मार्केट। और कुछ हिडन चीजें हैं जो लोग नहीं जानते। मैंने एक वेंडर से बात किया, उनका मेरे पास कुछ मटेरियल अवेलेबिलिटी के लिए कॉल आया था, तो ही सेड कि हम तो 1,50,60,000 में सिस्टम लगा देते हैं। ना अच्छा, अर्थिंग वगैरह? बोले अर्थिंग की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ से भी चीज़ें चालू होती है। बोले कई कस्टमर्स के यहाँ तो अर्थिंग करने की जगह ही नहीं होती, तो बोले हम क्यों करें? अगर घर कॉम्पैक्ट है तो दे इवन स्किप द अर्थिंग, कि आपको जाके रोड पे सीमेंट कंक्रीट को तोड़ के अगर अर्थिंग करनी है तो दे सी दैट एज अ चैलेंज, और वो अर्थिंग ही स्किप कर देता है। तो स्किपिंग द अर्थिंग इज आल्सो वेरी रेगुलर प्रैक्टिस। इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ है? जैसे अभी हम लोग एआई पे पहुंच गए हैं, वैसे इसमें कुछ है हाइब्रिड वगैरह? हाइब्रिड सिस्टम्स आर गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट, बैटरी ऑपरेटेड। जैसे अभी हम ऑन ग्रिड लगा रहे हैं, इसी तरह से थोड़े समय में हाइब्रिड सिस्टम्स ग्रो करेंगे बैटरी वाले। अभी इतना इसमें व्हाट इज दिस? मतलब लाइक दैट ओनली, कि घर में भी अब बैटरीज लगेंगी, घर में, इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज पे, क्योंकि अभी हम शाम के बाद एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिन में सोलर बना रहा है। तो जब बैटरीज आ जाएंगी तो हम उस एनर्जी को बैटरी में सेव करेंगे और इवनिंग टाइम में उसको यूज कर पाएंगे, ताकि हम पूरी तरह से हमारी एनर्जी के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाओ, सिंपल एक्सप्लेन करो। जैसे देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि आपने दिन में एनर्जी बनाया, पहले यूज किया और एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सपोर्ट कर दिया, और सनसेट के बाद तो आप एनर्जी बना ही नहीं रहे, करेक्ट, बिकॉज सन तो काम कर ही नहीं सकता। नहीं करा। हाँ। तो अगर आपके पास बैटरीज होंगी तो आपने जो डे टाइम में आप एनर्जी बना रहे हैं उसको आप बैटरीज में सेव करेंगे, बैटरीज को चार्ज करके रखेंगे, और इवनिंग टाइम में फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। तो अब ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि बैटरीज का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्टिंग हेवी है, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन होगा, बैटरीज की कॉस्टिंग कम होगी, बैटरी की लाइफ साइकिल्स बढ़ेगी। अभी बैटरी का लाइफ साइकिल कम है, 4-5 साल में रिप्लेसमेंट आ जाता है। तो अभी इस पे बहुत काम हो रहा है। तो जैसे ही ये सब एक्सपेरिमेंट्स या जैसे इसमें एवोल्यूशन होगा, तो हाइब्रिड सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑफ ऑल टाइम हाई। जैसे अभी आपको मैं एक बताऊं कि सरकार ने आपके बिल्स में टीओडी लगाना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज टीओडी? टाइम ऑफ द डे, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया है टाइम के। जैसे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक स्लैब चलता है कि इसमें आपने जो एनर्जी यूज करी है तो आपको सरकार 20% डिस्काउंट में एनर्जी देती है, क्योंकि इस टाइम में सरकार के पास भी सरप्लस एनर्जी है, क्योंकि सोलर से भी आ रही है। शाम को 6 से 10 का एक स्लॉट होता है। इस स्लॉट में सरकार, अगर आप एनर्जी यूज करते हैं तो आपको 10 से 20% की पेनल्टी लगा के लेती है, क्योंकि उस समय एनर्जी डेफिसिट है, तो उस समय में आपको चार्जेस लग के आते हैं। फिर थर्ड स्लॉट होता है 10 से 12 या 2 बजे तक का, उसमें आपको फिर से डिस्काउंट मिलता है, और फिर स्लॉट होता है 2 से 6 का। तो इस तरह से ये 4 जोन्स में टाइम को डिवाइड किया गया है, और टीओडी लगना अब 10 किलोवाट के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये कॉस्ट पिंच करेगी लोगों को, तो लोग धीरे धीरे अपने आप बैटरीज पे शिफ्ट होंगे। जनरली क्योंकि इंडस्ट्रीज तो 6 से 10 वर्क करती है, या कमर्शियल, तो इनको ये कॉस्ट बहुत हाई, 20% पेनल्टी जब लग के आएगी, तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ एक चीज और पूछना भूल गया मैं गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में। सिंस आप एक्सपीरियंस हो, आपने गवर्नमेंट टेंडर्स भी लिए, तो क्या दूसरे लोगों को भी गवर्नमेंट टेंडर्स उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? आपकी क्या सजेशंस है इस पे? Very difficult to comment on this because I have been a part of this. We started our projects. We have done a very, very big high number of projects in government. We have installed on the CHCs, Common Health of Government, all secondary higher schools, right from Gwalior to Jabalpur, Balaghat, Bell. We have installed n number of schools. But if you talk about government projects, at least for me, I have experienced payment cycles are not very, because when we started government projects, there was no GST. And suddenly the GST structure came and we got stuck up
badly in our payment cycles. Oh, So I won't recommend. But people who can do it, because there are many companies who have made money with government projects. So I won't deny on that also. any final advice जो आप entrepreneurs को देना चाहोगे? Okay, for the entrepreneurs, I'd like to say that before coming into this business, have a proper technical insight of this business. Take some good trainings or work with some good company for some time, and then work with good margins so that you'll be able to give a good after sales support for that. Otherwise, you won't be able to sustain in this business. So working with healthy margins and with proper technical insight, that is, I would like to tell to the entrepreneurs. For customers, I would like to say you should understand the complete quality, all the factors that I have mentioned in this podcast, right from the panel brands, inverter brands, the kind of structure the vendor is giving, and the kind of installation, the quality of clamps, wires, cables, earthings, LAs that he'll be installing, and the most important thing, the after sales support that he's ready to get. Because here, we just don't believe in breakdown maintenance. We believe in preventive maintenance also, Correct. which is important in solar industry. So before the problem is arising, we are trying to fix it. So this should be the approach. All right, Pooja, thank you so much for taking out your time and coming to the show. आप अपनी एक बार वेबसाइट भी बता दीजिए सबको और कॉन्टेक्ट भी बता दीजिए इफ इन केस किसी को रिक्वायरमेंट हो इंस्टॉलेशन की सो दे कैन गेट इन टच विद यू. Sure. My website is www.infiniteenergy.in. We are there on social media, Facebook, Instagram also with the same name, Infinite Energy. And if you want to contact us, you can contact on 94240 85757. Thank you.